students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the throne of justice. इसमें हम कहानी पढ़ेंगे एक ऐसे राजा की जो अपने सिंहासन पे बैठ के क्या करता था, जस्टिस करता था, लोगों को इंसाफ देता था. समरी पढ़ लेते हैं पहले. किंग विक्रमादित्य was famous and was praised by all his justice. He gave perfect justice to his people. What qualities do you think a king should have? This question has its answer in this play. Let's read and enjoy this beautiful story about the magnificent throne of विक्रमादित्य. तो आइए इस प्ले को पढ़ लेते हैं. सीन 1. ठीक है, पहला सीन है अ विलेज सीन, मतलब विलेज का सीन है, गांव के लोग हैं और गांव का ये सीन है. एन ओपन स्पेस विद अ रो ऑफ स्टोन्स अरेंज्ड इन अ स्पेशल वे. At one end there is a raised mound which looks like a throne. It has smaller stones arranged around it. Small village cowherds are grazing their cows on the grass that grows upon the ruins. ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन्स रखे हुए हैं, उनको एक स्पेशल वे में अरेंज किया गया है कि वो एक सिंहासन लगे. Now first cowherd notices the large mound. Friends, look how these stones are arranged. तो यहाँ पे फर्स्ट काउहर्ड बात करता है कि यहाँ पे जो स्टोन्स है वो कितने सुंदर तरीके से अरेंज किए गए हैं. सेकंड काउहर्ड, yes, and do you see the mound here? What could it be? All the cowherds gather around the mound. Third cowherd, I think it's a king's judgment seat. तो वो सबके सब उस ग्रुप ऑफ स्टोन्स को देख करके कहते हैं कि ये हमें राजा के सिंहासन के जैसा लग रहा है. ऑल द काउहर्ड्स अमेज्ड, किंग्स जजमेंट सीट, मतलब राजा का सिंहासन जहाँ से वो क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे. फर्स्ट काउहर्ड, यस, आई थिंक अ किंग सैट ऑन दिस थ्रोन एंड गेव जजमेंट्स. फोर्थ काउहर्ड, लेट्स हैव अ गेम. Fifth cowherd, yes, let's play at having trials. All the cowherds cheer as they feel it is going to be fun. अब सबके सब क्या करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं और कहते हैं कि चलो मज़ा आएगा. Third cowherd, I will sit on the mound and solve your quarrels and disagreements. I will be the judge. Third cowherd बोलता है कि मैं इस माउंड पे बैठूंगा और जजमेंट्स करूंगा. ठीक है. The cowherds gather together and make up quarrels. The third cowherd moves up the mound and sits on it. As soon as he sits on the mound, he becomes serious and solemn. The other cowherds are joking and laughing. अब जैसे ही जो थर्ड काउहर्ड होता है वो उस पर बैठता है तो वो सीरियस हो जाता है. ठीक है, मतलब उस गद्दी में या उस सीट पे इतना ज़्यादा पावर थी कि उस पर बैठकर कोई भी अब हंसता नहीं है, वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, सिंसियर हो जाता है. थर्ड कावर्ड स्टर्नली प्रोसीड, अब वो क्या बोलता है, आदेश देता है कि प्रोसीड करो. नाउ किंग. फिफ्थ काउहर्ड, ओ किंग प्लीज सॉल्व आवर प्रॉब्लम. दिस फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ ईटन द फूड माई मदर गेव फॉर मी. नाउ आई एम हंग्री. When I ask him to give me something to eat, he refuses, saying that he has already eaten up the food his mother gave for him. Please settle this quarrel. फिफ्थ कावर्ड आता है, बोलता है महाराज मेरी प्रॉब्लम का समाधान करो. मेरी मम्मा ने जो मुझे खाना दिया था वो इसने खा लिया. अब ये मैं इससे खाना मांगता हूँ कि तू अपनी मम्मा का खाना मुझे तो दे, तो वो कहता है मैंने अपनी मम्मा का भी खाना खा लिया, तो इस प्रॉब्लम का समाधान करो. All the cowherds laugh and joke. They are not serious at all, but the cowherd on the mound is very solemn and thoughtful. He listens to the problem and thinks. अब बाकी सब लोगों के लिए वो बात फनी लग रही थी तो वो हंस रहे थे, लेकिन जो माउंड पे बैठा हुआ था, सिंहासन पे बैठा हुआ था, वो काफ़ी थॉटफुल था. ठीक है, वो सीरियसली प्रॉब्लम्स को सुन रहा था. Third cowherd, now king. Well, I have thought about the matter. One should never go hungry. So let us solve the matter of your food first and then decide the punishment for your friend. As none of your friends have eaten their food as of yet, they will share their food with you today so that you do not go hungry. As for the punishment, tomorrow your friend will bring food for you as well. अब वो जो राजा बना था वो बहुत सीरियस होकर के बातें सुनता है. ठीक है, और क्या कंक्लूजन निकालता है, वो कहता है कि
इसको तो पनिशमेंट बाद में दूंगा, पहले तुमको भूख लगी है तो एक काम करो, तुम्हारे जो बाकी फ्रेंड है जिन्होंने अपना खाना नहीं खाया उनसे तुम थोड़ा थोड़ा खाना ले लो, और बाकी ये जो तुम्हारा फ्रेंड है जिसने तुम्हारा खाना खा लिया है, इसको मैं ये पनिशमेंट देता हूँ कि कल जब ये आएगा तो ये तुम्हारे लिए भी खाना लेकर के आएगा। ऑल द बॉयज़ चीयर एंड क्लैप्ड, दे आर वेरी हैप्पी। तो वो डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही था, तो सारे के सारे बहुत खुश होते हैं और क्लैप करते हैं। All the cowherds are shouting, very fair judgment. Now the cowherds now return to their homes. सारे के सारे अपने आप घर चले जाते हैं। अब आते हैं सीन 2 पे। विलेज हाउस का ये सीन है। The 6 cowherds, the cowherd who had eaten his friend's food house. It is night. The cowherd and his mother and father are having dinner. अब वो जो काउहर्ड था, 6 काउहर्ड जिसने अपने फ्रेंड का खाना खा लिया था, वो अपने फादर मदर के साथ क्या कर रहा है, रात का समय तो वहाँ पर डिनर कर रहा है। मदर, हाउ वॉज योर डे टुडे? 6 काउहर्ड, वेल वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे, वी प्लेड अ गेम, द किंग एंड द थ्रोन, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स बिकेम किंग एंड सैट ऑन अ थ्रोन, it was actually a mound, but it is very strange that as soon as he sat on the throne he became serious and stern, just like a king. He even solved our problems and settled our quarrels very wisely. The parents smiled and are amused. अब उसकी मदर जो है, अब जैसे आप लोग क्या करते हो, आपके स्कूल में जो भी कुछ हुआ होता है आप अपनी मम्मा को जाके बताते हो, तो उस 6 काउहर्ड ने अपनी मम्मा को बताया। जब उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, तो वो पूरा वाक़या बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ। जो भी इंसान उस थ्रोन पे बैठता है, उस सिंहासन पे बैठता है, वो वाइज बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, और उसने बताया कि कैसे उसने जजमेंट दिया, तो उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। 6 cowherd, the quarrel was made up was of a friend. Who was I? Eating up another friend's food. Our king friend settled our quarrel very wisely. He made sure that the friend whose food I had eaten did not go hungry. He asked the other cowherds to share their food with him. As for my punishment, he ordered me to get food for the friend whose food I had eaten. The next day, we were all very surprised at the manner in which the king cowherd handled the situation. It was a very जस्ट जजमेंट। अब वो बताता है कि मैंने जिस फ्रेंड का खाना खा लिया था, मुझे पनिश किया गया है, मुझे ये दंड दिया गया है कि मैं उसके लिए आज खाना लेकर के जाऊंगा। The parents are surprised at the cowherd's wisdom. They realize that it is beyond his age. अब पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि उस काउहर्ड ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया था। नाउ सीन 3 पे आ जाते हैं। किंग्स ऑडियंस रूम। अब क्या है, किंग्स का दरबार लगा है, उसकी ऑडियंस रूम है। द किंग इज सिटिंग विद अ फ्यू मिनिस्टर्स। ठीक है, राजा का दरबार लगा है, वो अपने मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है। किंग, आई वंडर इफ द फेमस throne of King Vikramaditya lies buried under the mound on which the boy sat when he gave the judgment. If the throne can make a cowherd give a wise decision, won't it help me to become a better king? अब राजा जो है वो अपने दरबारियों से डिस्कस कर रहा है कि ये जो थ्रोन है, इस थ्रोन में बैठकर एक कौन से काउहेड ने इतना अच्छा डिसीजन दिया था, तो मैं इस सिंहासन पे बैठकर, मैं तो राजा हूँ, तो मैं और अच्छे डिसीजन दे सकता हूँ। The king gets up and paces up and down talking to the present ministers. King, I have asked my pen to dig up the ground and find what lies hidden there. They will soon be there. अब वो कहता है कि मैं अपने कुछ लोगों को भेजूंगा, दरबारियों को भेजूंगा कि वो वहाँ पे क्या करेंगे, डिग करेंगे और जो वहाँ पे छुपा हुआ है उसे पता लगाएंगे। The sound of people talking is heard from backstage. Careful, gently, slow. It's heavy, but precious for the king. 5 men carrying the throne enter the stage. A few follow them. They put the throne down and wait for others. The throne is covered with mud. अब उन्होंने उस खुदाई में से क्या निकाला, थ्रोन को निकाला, सिंहासन को निकाला। वो जो थ्रोन था वो फुल्ली कवर्ड था, किस चीज़ से, मड से, मिट्टी से। King inspects the throne, clean and polish the throne. Tell the royal priest to find an auspicious date on which I shall sit on the throne of Vikramaditya and try to solve the people's problems and conflicts. अब वो कहता है कि इसको क्लीन करो, पॉलिश करो, और प्रिस्ट जो है, पुजारी जो है, उससे एक दिन निकालो, मतलब एक मुहूर्त निकालो जिस दिन मैं इस पे बैठूंगा और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। Looks closely at the throne again. King, what are these? They look like carvings. Of course, they are Garudas.
Count them. King, there are 24 Garudas. I wonder what they are for. अब वो क्या करता है, वहाँ पे जो सिंहासन होता है उसमें कुछ कार्विंग्स बनी होती है, कुछ चीज़ें बनी होती है, कुछ चिन्ह बने होते हैं. वो चिन्ह किसके होते हैं? गरुड़ के होते हैं. सीन 4, किंग्स पैलेस. ठीक है, अब किंग का पैलेस है. क्राउड्स हैव गैदर्ड इन द पैलेस ग्राउंड्स. द किंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन एंड प्रेइंग. He moves towards the throne. Just as he is about to sit on the throne, one of the Garudas moves its wings. अब वो दिन आ गया था जिस दिन उसको उस सिंहासन पे बैठना था. तो क्या हुआ, जैसे ही उस सिंहासन पे वो बैठने वाला था, उस गरुड़ जो था उसके सिंहासन पे उसने अपनी एक विंग को मूव किया. Voice of Garuda. Wait, first question yourself. Are you really worthy of sitting on this throne? Only a person who has a pure heart can sit on this throne. The king stops. अब गरुड़ की वॉइस आई और उसने कहा कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस थ्रोन, इस सिंहासन पे बैठने से पहले क्या तुम्हारा हार्ट जो है वो प्योर है, मतलब सच्चा है, तभी तुम इस थ्रोन पे बैठ सकते हो. Voice of Garuda. Ponder on what I have just said. Tell me, have you ever been cruel or unjust to any living being? The king thinks. अब वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी इनजस्टिस की है या किसी लिविंग बीइंग पे तुमने उसको हर्ट किया है या कुछ क्रूअल्टी दिखाई है. King, I have asked the question to myself. The answer that I get tells me that I do not deserve to sit on this throne, as I have been cruel and unjust many a time. For 3 days I will fast, pray and make yourself worthy of the throne. Only then I will return. तो किंग कहता है कि मैं ये क्वेश्चन खुद से पूछता हूँ. तो कहता है कि मैं इस सीट पे बैठने के लायक नहीं हूँ, मैं ये सीट डिज़र्व नहीं करता क्योंकि मैं क्या हूँ, मैंने बहुत बार इनजस्टिस की है, लोगों पे क्रूअल्टी दिखाई है. तो कहता है 3 डेज़ के लिए मैं दूर चला जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा. नाउ सीन 5, किंग्स ऑडियंस रूम. अब कौन सा रूम है, जो किंग की ऑडियंस है वहाँ का रूम है, उसका सीन यहाँ पे दिखाया गया है. एवरीवन हैज़ असेंबल्ड एज बिफोर. द थ्रोन इज स्टिल लाइंग इन द रूम. One person from the crowd. So many days have passed. Every time we come here, the same thing happens. As the king is about to sit on the throne, one of the Garudas asks the same question. The king then stops and his courage fails. He says he is still not ready and goes to fast and prays for 3 days. अब एक आदमी होता है, वो बोलता है कि हम लोग को यहाँ आते आते काफ़ी टाइम हो गया है. हर बार यही होता है, किंग उस सिंहासन पे बैठने जाता है लेकिन गरुड़ उससे क्वेश्चन पूछता है और जो किंग है उस सिंहासन पे बैठ ही नहीं पाता और फिर 3 डेज़ के लिए फास्टिंग वगैरह करने के लिए, प्रे वगैरह करने के लिए चला जाता है. Second person from the crowd. This has happened 23 times. 23 Garudas have spoken. Now there is just one Garuda left. Let us see what happens today. अब वो कहता है कि ये 23 टाइम्स हो चुका है, अब एक ही गरुड़ बचा है, तो देखते हैं इस बार क्या होता है. All the people who have assembled look worried and said. The king has an anxious expression on his face. The king moves toward the throne. As expected, the 24th Garuda fluttered its wings and speaks. जैसे ही किंग सिंहासन की तरफ बढ़ता है, वैसे ही जो लास्ट गरुड़ था वो उससे क्वेश्चन पूछता है. Voice of Garuda. This time I am not going to ask the same question. I shall only ask you, have you not understood why we ask you if you have been cruel or justice? वो कहता है कि मैं तुमसे बार बार वही क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि हम तुमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं. King, yes, I have understood. The cowherd was permitted to sit on the throne as he was pure at heart and he had never been cruel और अनजस्ट. वो कहता है मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ, आपने काऊ हर्ड को बैठने दिया था क्योंकि वो हार्ट से क्या था, प्योर था, उसने कभी भी किसी के साथ अनजस्ट नहीं किया था, कभी किसी के लिए वो क्रूअल नहीं हुआ था. एज द किंग स्पीक्स देयर इज अ लाउड रसलिंग साउंड. द थ्रोन राइजेज इन द एयर एंड flies away with the Garudas holding it. The crowd watches amazed. The king goes to the space where the throne stood. अब जैसे किंग ने बात की तो वैसे ही जो लाउड रसलिंग साउंड था वो वहाँ पे आया, ठीक है, और उस सिंहासन को उड़ा करके ले गया, मतलब जितने भी गरुड़ थे उस सिंहासन को उड़ा करके ले गए. King, my dear subjects, you all have been witnesses to the happenings in the past few weeks. I was not allowed to sit on King Vikramaditya's throne. The Garudas made me realize that I was not worthy of sitting on the throne.
I have learned a lesson. Just sitting on Vikramaditya's throne will not make me a wise and just ruler. I should be wise and just in all my actions, whether or not I am seated on the throne of Vikramaditya. Once again, the judgment of Vikramaditya had been a wise one. Everyone cheers. Curtain. अब किंग समझ चुका था कि इस सीट पे बैठने के लिए योग्य पर्सन वही है जो दिल का सच्चा है, जिसने क्रूअल्टी नहीं दिखाई है। तो ये भी क्या था, उस किंग को उस सीट पे ना बैठने देना भी विक्रमादित्य का ही एक आदेश था, उनकी एक जस्टिस थी, उनका ही एक क्या था, निर्णय था कि वो जो किंग है वो बिल्कुल भी क्या था, ईमानदार नहीं था, दिल का साफ नहीं था, ठीक है, क्रूअल्टी दिखाता था, इसलिए उसको उस सिंहासन पे बैठने का कोई हक नहीं है। Now word bucket, amazed, very surprised. Solemn means serious. Garudas means bird-like creature. Worthy means deserving. Unjust means unfair. Courage means bravery. Anxious means worried or nervous. Flutter means moves lightly or quickly. अब हम चैप्टर पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, अब हम इसके आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस के। थिंक एन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द माउंड हैज़ स्मॉलर डैश अरेंज अराउंड इट, तो उसमें क्या थे, स्मॉलर स्टोन्स थे, सो यू विल राइट स्टोन हियर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज अ रेज डैश विच लुक्स लाइक अ स्टोन, तो यहाँ पे क्या है, रेज, आप यहाँ पे लिखोगे माउंड, जो कि थ्रोन की तरह दिखता था, सिंहासन की तरह दिखता था। Who said this? Yes, yes, let's play at having trials. तो one of the cow herd have said this. Answer the following questions. What type of game was played by the cow herds? तो उन्होंने कौन सा गेम खेला था? One of the cow herds become the king and he sit on the mound and they decided to play a game of justice. Now values inside, only a person who has a pure heart can sit on this throne. What does the Garuda means to say? अब जो सिंहासन होता है ना, जो जज की कुर्सी होती है, वो बहुत ही प्योर होती है, ठीक है, तो उसमें हर कोई नहीं बैठ सकता, उसमें एक ऐसा इंसान बैठ सकता है जिसको जस्टिस करना आता हो, जिसने खुद न्याय किया हो लोगों को, जिसने हर्ट ना किया हो, फेयर रहा हो, तो ऐसे इंसान को ही उस सिंहासन पर बैठने का हक होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, किसी के साथ भी हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ग्रामर स्ट्रोक्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, पास्ट परफेक्ट टेंस, रीड दीज sentences. Patrick played with the elf after he had completed his homework. As soon as the elf had completed Patrick's homework, he went home. तो यहाँ पे कुछ बातें हमें बताई गई है जो पास्ट में हुई हैं। The words had completed in both sentences are in the past perfect tense. In both sentences had completed describes an action that has been completed. ठीक है, तो had completed का मतलब है कि कोई काम जो है वो perfectly complete हो चुका है। The past perfect tense is used to describe an action that has been completed before and another past action. In the first sentence, had completed is the action that has been completed. Played is the other past action. Similarly, in the second sentence, had completed is the action that has been completed. Went home is the other past action. ठीक है? Now complete the sentences given below with the help of the verbs from the box. Don't forget to write the other past action for each sentence. So यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं जो कि complete है, आपको यहाँ पे कुछ hint दिए गए हैं, उनसे आपको उन sentences को complete करना है। Like she dash late to class several times before she was scolded. So you will write here she had been late to the class several times before she was scolded. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के fill in the blanks fill करेंगे। Let's move on. Complete this dialogue between the hare and the tortoise with the help of the words given in the box. Again आपको कुछ words के साथ hint दिया गया है, उस hint को आपको पढ़ के ये जो hare and tortoise वाली story है उसे complete करना है। Like here, did you get up in time today? So what will you write here? Tortoise, yes, I dash up before you knocked at my door. I had woken up. ठीक है, मैं उठ गया था, मैं जाग गया था जब तुमने मेरा डोर
नॉक किया मतलब उससे पहले ही, ठीक है। इसी तरीके से सही वर्ड्स को आप लिखकर इस स्टोरी को, इस डायलॉग को कंप्लीट करेंगे। नाउ वर्ड पावर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है स्लीप एंड नैप। तो स्लीप एंड नैप दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है, दोनों सोने का एक फॉर्म होते हैं, लेकिन स्लीप जो है ये आप लंबे समय तक लेते हो, एंड नैप जो होता है ये आपका माइल्ड छोटा सा रेस्ट होता है जो आप 2-3 मिनट्स के लिए लेते हो या फिर आप हाफ एन आवर के लिए लेते हो। नाउ क्रिएटिव जंक्शन, राइट द नेशनैलिटीज़ ऑफ दीज कंट्रीज़। तो आपको नेशंस दिए गए हैं, उनकी नेशनैलिटीज़ बतानी है कि उनके सिटीजन्स को क्या कहा जाता है। लाइक इंडिया, तो नेशनैलिटी क्या हुई, इंडियन। जापान, जापानीज़, ठीक है। इसी तरीके से आप फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, इनकी नेशनैलिटीज़ क्या है आप बताएंगे। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.